Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Tabila from RM Public School 4 Dots. This is our 7th week from our online support program and we have completed our 2 chapters from subject geography. Chapter number 1 was the universe and second chapter was the natural spheres of the earth. And in this video, which is the 7th video of our subject geography, we are going to learn about chapter number 5 from people and places around the world. In this video, we are going to learn about the location of Norway, which is from your textbook page number 64. Interesting geographical facts about Norway, which is from your textbook page number 65, and Norway's geology, which is from your textbook page number 67. Okay, so before starting our lesson, I have sent you a video. I hope you all have seen that. Okay, so let's move to the topic, which is location of the Norway. Okay, so location of the Norway. The Norway is located at the 60.5 degree north and 8.47 degree east in the Europe continent, and as you can see on the map, दिस इज द नॉर्थ साइड ऑफ द मैप. हम जब भी मैप पे स्टडी करते हैं तो हमेशा मैप की जो ऊपर की तरफ की जो साइड होती है इट इज इन द नॉर्थ. ये नॉर्थ साइड है एंड द नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है तो वी हैव साउथ डाउन की तरफ एंड देन ईस्ट इन द राइट एंड वी हैव देन वेस्ट on our left side. Okay, so Norway is situated on the northern Europe to the Sweden and Finland, and its borders the North Atlantic Ocean and to the west and the North Sea in the south. तो जैसे आप मैप पे देख रहे हैं कि नॉर्वे जो है वो यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में है, यानी कि यूरोप के शुमाली हिस्से में है और इसके नॉर्थ में आप यहाँ पे आपके पास अटलांटिक ओशियन आता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इसके साउथ में आपके पास नॉर्थ सी मौजूद है. देन नॉर्वे के ईस्ट में स्वीडन और फिनलैंड कंट्री है और नॉर्वे के वेस्ट में है अटलांटिक ओशन. Okay, so let's move to a new page, which is 65. Interesting geographical facts about Norway. So Norway's terrain. What is the meaning of the terrain? Terrain mean होता है इलाका. Terrain refers to the stretch of land and its natural feature. तो terrain refers करते हैं किसी भी इलाके के कि उसके natural features कहाँ तक हैं, कितने इलाके तक वो इलाका, कितनी जगह तक वो इलाका फैला हुआ है. तो Norway forms the part of Scandinavian Peninsula and which stretch across the countries of Denmark, Sweden and Finland and Iceland. तो ये बेसिकली ये इलाका जो है जिस पेनिनसुला पे मौजूद है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, तो ये पेनिनसुला ये इलाका ना सिर्फ नॉर्वे के इलाके पर मौजूद है बल्कि इर्द गिर्द में स्वीडन और नॉर्वे तक के ये इलाका जो है वो फैला हुआ है. What is the meaning of the word peninsula? The peninsula is a piece of land that is mostly surrounded by the water but is still connected to the mainland. आपको पहले भी मैंने बताया था कि पेनिनसुला जमीन का वो हिस्सा होता है जो कनेक्टेड तो जैसे पानी से कनेक्टेड होता है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास पूरा नॉर्वे का जो एरिया है वो आपको सी साइड पे, ओशन साइड पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, बट स्टिल दिस एरिया इज कनेक्टेड टू द लैंड. मेन एरिया इज कनेक्टेड टू द लैंड. तो पेनिनसुला हम उस इलाके को, उस एरिया को कहेंगे जिसका जो कि समंदर से कनेक्ट तो है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो ज़मीन से भी जुड़ा होता है. तो उस इलाके को हम पेनिनसुला कहते हैं. द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन यूरोप विद अ लेंथ ऑफ 1850 and width of between 370 to 805 kilometers. The Scandinavian mountain range marks the border of between Norway and Sweden. अब आपको यहाँ पे मैप पे फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे का जो मैप नजर आ रहा है तो यहाँ पे एक वाइड सी बारीक लाइन आपको दिख रही होगी. तो ये जो बॉर्डर है ये
जो जो चीज़ आपको मार्क कर रही है, तो ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं जो कि स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे के बॉर्डर्स को यहाँ पे मार्क करती हैं. Then we have glaciers. Look at your book on text of page number 66. What are glaciers? Basically, the glaciers is a huge mass of ice that moves slowly over land. तो ग्लेशियर्स होते हैं वो बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े हिस्से होते हैं जो कि जमीन पर स्लोली मूव करते हैं. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द Norway consists of the mountain that have been carved by prehistoric glaciers, which are huge masses of ice that move slowly on land. तो नॉर्वे का जो मोस्टली जो पार्ट है, जो माउंटेन्स है, वो कंसिस्ट करता है ग्लेशियर्स पे. यानी कि मोस्टली जो ग्लेशियर्स है वो हमारे नॉर्वे का जो मेन इलाका है वो तमाम ग्लेशियर्स पे कंसिस्ट करता है. और ये तमाम जो है ग्लेशियर्स ये प्री हिस्टोरिकली बहुत सालों से जो थे वो यहाँ मौजूद हैं और स्लोली ये लैंड से ये ग्लेशियर्स है वो मूव कर रहे हैं. देन वी हैव फिजॉर्ड्स. तो व्हाट आर द फिजॉर्ड्स? आप यहाँ पे देखें, देयर इज अ डीप वैली विद अ वाटर between the mountains. So basically fjord is a long narrow inlet with steep sides on cliffs created by the glaciers. जब अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब ग्लेशियर्स जो है वो स्लोली ज़मीन से मूव करते हैं, तो जब वो ग्लेशियर्स मूव कर जाते हैं, अपनी जगह खाली कर देते हैं, तो वहाँ पे जो प्लेन एरिया होता है, जो जगह रह जाती है, उस जगह को क्योंकि वो डीप वैलीज के पहाड़ों के दरमियान की जो एरिया होता है, वहाँ पे जब वो ग्लेशियर्स मूव कर जाते हैं तो उसके बीच का जो एरिया होता है वो फिल हो जाता है बाय द वाटर ऑफ सी. कभी वो फ्रेश वाटर होता है और कभी वो सी का वाटर है तो वो सॉल्टी वाटर होगा, और अगर वहाँ पे कहीं लेक या फिर कोई रिवर है तो वो फिल हो जाता है फ्रेश वाटर से, मीठे पानी से. तो ये तमाम एरिया फिजॉर्ड कहलाता है जो कि दो डीप वैलीज के बीच में मौजूद है. द स्ट्रिप्स ऑफ द फिजॉर्ड इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न नॉर्वे इज मोर देन 200 किलोमीटर वाइड, while that in the southern Norway is just 30 किलोमीटर वाइड. अब जो फिजॉर्ड्स है नॉर्वे के एरिया में, वेस्टर्न और नॉर्दर्न नॉर्वे में, दोज आर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर वाइड. द वेस्टर्न एरिया इज 200 किलोमीटर वाइड एंड द साउदर्न नॉर्वे इज ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर वाइड. And here we have the move to next topic, which is Norway's geology. So basically word geology refers to the study of rocks. Norway has 3 areas with different geological features. First one is southwestern Genesis Province, second is Oslo Rift, and third is Scandinavian Caledonides. Okay, so अब आपके पास आपकी बुक का मैप है. Look at the page number 67. So the first there is a southwestern Genesis province that lies in the southern of the Norway. Since this area has many mineral deposits such as titanium, coal and iron ore, there is also many mines. अब आपके पास यहाँ पे मैप पर है, मैप अपनी बुक पर देखें. साउथ वेस्टर्न जेनेसिस प्रोविंस. आपके मैप पर all the places which are in the color of yellow color में जितनी ये places हैं, ये these all are in the south western Genesis province. ये सारे इस प्रोविंस में हैं. और ये जो एरिया है ये तमाम ये यहाँ अभी जो पढ़े हैं वो नॉर्वे की जियोलॉजी यानी कि इसके जो फिजिकल फीचर्स है उसको पढ़ें. ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी येलो एरिया है these are all in the south western Genesis province. और यहाँ पे इन तमाम इलाके, ये तमाम इलाका जो they all have very minerals. They all are rich in minerals. They have a lot of titanium, coal and iron ore, and they also have a lot of mines. Mines क्या होते हैं? जमीन के अंदर से कीमती मादनियात जो होती हैं, मिनरल्स, उनको निकाले जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे माइंस इस इलाके में नॉर्वे के मौजूद हैं. Secondly, there is Oslo that lies on the Oslo Rift, which consists of young magma rocks. Secondly, we have the Oslo Rift, which is in the red color. आपको यहाँ पे मैप पे यहाँ मार्क की हुई है. ठीक है, तो the second part is the main part of Norway is Oslo Rift. अब ये वो एरिया है जहाँ पे यंग मैग्मा और रॉक्स मौजूद हैं. ठीक है, ये this area have a lots of magma in it. और third is there is mountain
Okay, third is there is a mountain range known as Scandinavian Caledonites, consists mainly of sedimentary of volcanic rocks. Due to subduction, limestone in this region has been subjected to high temperature and heat, causing it to alter and transform into marble. The third is Scandinavian Caledonites. These which is mentioned on the map in green color. तो ग्रीन कलर में आपको जो भी इलाका नज़र आ रहा है आपके मैप पे, दिस एरिया इज़ कंसीडर्ड इनटू द स्कैंडिनेवियन कैलेडोनाइट्स। यहाँ पे ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक रॉक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे वोल्केनिक एरियाज हैं यहाँ पे। तो सबडक्शन की वजह से यहाँ पे जो लाइमस्टोन के जो जिन इलाकों में लाइमस्टोन मिनरल पाया जाता है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से वो तमाम लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो गए। ओके, एंड द लार्ज एरियाज ऑफ द नॉर्वे वर फ्लडेड इन द पास्ट। अब बहुत सारे नॉर्वे के ऐसे एरियाज हैं जो कि पहले टाइमों में गुजरे टाइम तमाम इलाके जो थे वहाँ पे बहुत सारी फ्लड यानी कि सैलाब आते रहे हैं। तो ड्यू टू दिस थिक लेयर्स ऑफ क्ले, silt and sand were deposited along the present coast. These regions have very fertile soil. However, soil has lost its nutrition in most parts of Norway, especially in forested areas. अब बहुत सारे सैलाब आते रहे हैं तो as we also know कि जहाँ सैलाब आते हैं वहाँ पे सैलाब या समुद्र से दरियाओं का जो पानी है अपने साथ सिल्ट यानी कि ऐसी मिट्टी बहा कर लाता है जो कि फसलों की उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। अब बहुत सारे फ्लड आते रहे तो ड्यू टू दोज फ्लड्स वहाँ की जो लेयर्स थी थिक क्ले की जो एरिया थे जहाँ सैलाब आते रहे वहाँ पे बहुत सारी ऐसे जगह मौजूद है जो कि बहुत कल्टीवेटेड बेहतरीन कल्टीवेटेड एरियाज हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी रीजन हैं जहाँ पे वो फर्टाइल सॉइल जो है वो रिमूव हो गई है, ठीक है, स्पेशली उन एरिया से जो फॉरेस्टेड एरियाज थे। क्यों रिमूव होगी? क्योंकि वहाँ से जो डिफॉरेस्टेशन होती है, ये दरख्तों को काटा जाता है, इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे जो एरियाज है वहाँ की सोइल जो है वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो खो चुकी है। एंड here we have the homework. Make a lesson title of this chapter, then define the following terms. First one is terrain, then peninsula, third glaciers, fourth fjords, and last one is geology. And answer the three questions. First one is what is the physical location of Norway, which is you can write the answer of this question from the textbook page 64. Then figure 5, question 2, figure 5.24 shows a map of the world. Mark X where Norway is located, and do this question 2 on the textbook page number 78. Then we have question number 3, explain what fjords are and how they are formed. And reference of question number 3 is from the textbook page number 66. Okay, thank you so much.